Hello students, this is my second video for a 10th class magnetic effect of current chapter. Now we are on the Oersted experiment. In the first lecture we have studied about the bar magnet, its magnetic field lines, how we can draw the magnetic field lines of a bar magnet, right? ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਜੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਂਸ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ। ਅਗਰ ਘੱਟ ਡੈਂਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 3। ਔਰਸਟਡ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਕਿ ਜਦ ਕਰੰਟ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੁੰਬਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਸਟਡ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰਸਟਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਰਾਈਟ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। So what we have done, we have taken one copper wire, ठीक है, thick copper wire, this is the copper wire, and we have connected it with the cell or a battery. We have kept open in the starting the key, there was no current inside, koi current nahi hai, and we have kept this bar magnet with this in the direction of north. This bar, sorry, not a compass, we will take a compass north will stay in the direction of north, so in the same direction we will keep the copper wire. मतलब कि ये जो कॉपर दी वायर है ये उसी तरफ नू रख ली जिस तरफ नू कंपास फिक्स होया है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन जो फिक्स होया है उसी डायरेक्शन से रख लिया, ये रुक गया। हुण ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन साउथ है। वी विल क्लोज द की एंड अ करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। When the current start to flow, we will see that compass will show the deflections. compass जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। किस तरह डिफ्लेक्ट होएगा? आ नॉर्थ जो है इस तरफ आ जाएगा और आ साउथ नेचुरली इस तरफ आ जाएगा, इस तरह घूम जाएगा ये, ठीक है। अगले स्टेप दे विच असीं की कीता, पॉजिटिव और नेगेटिव नू चेंज करता सैल दे। इहदे नाल की होया कि डायरेक्शन ऑफ द करंट जो है वो चेंज हो गई। करंट जो है वो हुण इधरों फ्लो हो रहा। फिर असी देखा कंपास फिर डिफ्लैक्ट होया, पर डिफ्लैक्शन की डायरेक्शन जो है वो अलग हो गई, राइट। ये क्लॉकवाइज डिफ्लैक्ट होया है, ये झटका लग गया एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट के नाल ये प्रूव हो गया कि जब मैगनैटिक फील्ड, जब करंट फ्लो होंदा है एक वायर दे विच, तां मैगनैटिक फील्ड बनती है। वो मैगनैटिक फील्ड इस मैगनेट ते, कंपास की हुंदा है, मैगनेट ही हुंदा है, इस मैगनेट ते फोर्स लांदी है, इस वास्ते डिफ्लैक्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? सिंपल प्रूव हो गया कि करंट दे नाल एक मैगनैटिक फील्ड चारों तरफ बनी, उन्हें इस ते फोर्स लाई, इस वास्ते ये डिफ्लैक्ट कर गया, तो करंट मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। प्रूव हो गया। ये भी प्रूव हो गया कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती होगी। क्यों? डिफ्लैक्शन अलग आ गई। हुण ये डिफ्लैक्शन इस तरफ क्यों आई?
ਇਹ ਜੱਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਐਂਪੀਅਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਰੂਲ ਜਾਂ ਸਨੋ ਰੂਲ। ਐਂਪੀਅਰ ਸਵੀਮਿੰਗ ਰੂਲ क्या है? एम्पीयर स्विमिंग रूल्स समझो भी तुसी स्विम कर रहे हो, राइट? जिस तरफ नु करंट है उस तरफ नु तुसी स्विम कर रहे हो, ये ਤੁਹਾਡੀ स्विमिंग है, ठीक है? इस तरफ तुसी स्विम कर रहे हो, ये ਤੁਹਾਡੇ पैर है। करंट is entering in your feet and coming out of your head. Here also you are swimming in this way, okay? Swimming this way. Then your left, whatever will be your left side, in that direction north will deflect. Note down, थोड़ा लेफ्ट कौन बनया? यह बनया लेफ्ट हो, और इस तरफ लेफ्ट कौन बनया? आ बन, इधर बाहर वाला, इधर अंदर वाला। आ बनया इस तरफ नु नॉर्थ मूव कर जाएगा, इस तरफ देखो, इस तरफ नॉर्थ मूव किया है। ए इस तरफ बनया नॉर्थ, लेफ्ट है ना, लेफ्ट इस तरफ होया है तो नॉर्थ इस तरफ होया, लेफ्ट इस तरफ होया था, नॉर्थ इस तरफ डिफ्लेक्ट होया है। दिस इज द रूल दैट स्विमिंग रूल कहता, एम्पीयर स्विमिंग रूल, दैट इमेजिन you are swimming and current is entering in your feet and coming out of your head, the north of the compass will deflect towards your left। एक है स्नो रूल, सेम ही रूल है, जस्ट तरीका अलग है डिफ्लेक्शंस पता करने। व्हाट इज इट सेइंग? इफ करंट इज साउथ टू नॉर्थ, करंट इज साउथ टू नॉर्थ, देन डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। डिफ्लेक्शन किस तरफ है? दिस इज द रूल। स्नो कहता साउथ नॉर्थ करंट है ना, देखो यहाँ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ करंट है ना, साउथ टू नॉर्थ करंट, देन डिफ्लेक्शन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ। सी अगर असी इंडिया का मैप देखिए, तुहानू पता ईस्ट दिस तरफ है, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। साउथ टू नॉर्थ अगर करंट है तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होएगी, नॉर्थ की। ये देखो साउथ टू नॉर्थ करंट है तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होए, ये ना वेस्ट, एंड वाइस वर्सा, मतलब उल्टा भी होगा, नॉर्थ टू साउथ होएगी तो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगी। फिलहाल इस स्नो रूल तुहानू समझ आ गया, साउथ टू नॉर्थ इफ देयर बी द करंट, द नॉर्थ विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट। Now we have to find out the magnetic field due to current carrying three types of conductor in the 10th class syllabus. One is a state conductor that we are doing now. Second is a circular ring, a coil, right? And third is solenoid, है ना, spring होंगे ना, these. So two we are doing in this lecture, the third one in the next one we will do, right? So first one I am taking magnetic field due to state current carrying conductor। एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਐ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣੇਗੀ। ਜੋ ਬਣੇਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਉਹ किमें बनेगी, ये फाइंड आउट करना है। मैक्सवेल ने फाइंड आउट किया, उन्होंने की किया, एक कार्डबोर्ड लिया, गत्ता है ना, जिवें मेरा हाथ है, और बिचों बिच आ इंसर्ट कर दी एवें करके, आ कंडक्टर इंसर्ट हो गया, आ कार्डबोर्ड इत्थे हैगा विद द होल, है ना। वी विल स्प्रिंकल आयरन फाइलिंग्स ऑन इट, आयरन फाइलिंग्स के ऊपर स्प्रिंकल कर दी चारों तरफ, और स्लोली स्लोली इन्हूं टैपिंग की। We will do the slowly tapping and we will see the magnetic field lines on this get adjusted in this way। एक सर्कल दे रूप च एवें करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जी ने वो एडजस्ट हो गई। इस चीज नाल पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड इत्थे करके असी कंडक्टर लाया होया, तो इत्थे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एवें करके सर्कल ने, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, एवें करके सर्कल बन गए।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਕਨੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਵਾਂ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਮੈਰਿਡ ਦੁਲਹਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੂੜਾ। ਉਹ ਚੂੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਰਿੰਗ, ਤੀਜਾ ਰਿੰਗ, ਚੌਥਾ ਰਿੰਗ, ਐ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा रिंग पा लो, उसके बाद बड़ा पा लो, उसके बाद बड़ा पा लो, इस तरह करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगियां। एक पर्टिकुलर पॉइंट ते करनी है, छोटा रिंग, बड़ा रिंग, होर बड़ा, एवें करके मैग्नेटिक फील्ड होगी। राइट, हुण डायरेक्शन की है उन्हां दी, इहदा पता लग गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स with center on the conductor, कंडक्टर ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦਿੱਤਾ। this is my right hand and this is my thumb, right? this is the conductor. they are saying that imagine the conductor in your hand, मेरे हैंड च आ गया, ऑफ राइट हैंड, डायरेक्ट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एक करंट की डायरेक्शन च हो गया। रोटेट योर फिंगर्स, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल, दिस इज द डायरेक्शन। आ करंट है तो एवें करके आ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बन गई। आ तुहाडे सामने है एंटी क्लॉकवाइज। Clear? This way. Simple. Obviously, if the current will be downside, this way, इस तरह होगा, then I will keep this hand in this way, thumb downside, and I will curl, rotate the fingers, encircle the fingers this way, then the magnetic field will be in this way. This is the direction of magnetic field. Simple. Okay, this is called Maxwell right hand thumb rule. Clear हो गया बेटा? Now this direction of magnetic field, रूल किस लिए हुआ? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने लिए। ये भी मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दसदा है। किवें दसदा है? देखो, आ तुहाडे कोल एक बोतल है, इहदे उपर एक कॉर्क लग गया है, ठीक। ये जो कॉर्क है ये बाहर नूं आवे तो तुसी ए रोटेट कर रहे हो ना, देखो हो गया बाहर, ए रोटेट कर रहे हो ना, तुहाडी तरफ आ गया एवें है। अगर बाहर नूं करंट होएगा तो बाहर नूं करंट लई जिवें रोटेट हो रहा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सी हियर, इस जगह ते करंट इज आउटसाइड, then बाहर आने लई the direction of rotation of a cork is the direction of magnetic field. Simple. This is the corkscrew rule, that the cork is directed to move in the direction of a current by rotating the cork. The direction of a cork is the direction of magnetic field. A corkscrew rule है, right? हुण अगर मैं तुहानूं कहां कि एक जिवें एक मैं क्वेश्चन भी तुहानूं एक्सरसाइज का दस्सिया सी भी एक पॉइंट है, इत्थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दसो। जस्ट इमेजिन एक कंडक्टर जो है एक तुहाडे ब्लैक बोर्ड ते तुहाडे पेज ते है, राइट, इस तरह इस तरफ नूं करंट जा रहा, तो इत्थे मैग्नेटिक फील्ड की की डायरेक्शन हुई। हुण देखो, मैं इसनूं अपने हाथ च लै लिया, एक करंट की डायरेक्शन च हो गया और मैं यूं रोटेट किया, एवें होया ना। इत्थे किवें आ रहा, एवें, ये डायरेक्शन आई, दिख रहे बेटा, आ मैं डायरेक्शन दिखाई है, आ वाली डायरेक्शन हुई है। ये जो डायरेक्शन है ये इस पॉइंट ते एवें आई, ये किस तरफ है, तुहाडी तरफ है ना, टुवार्ड्स द रीडर, टुवार्ड्स द रीडर, दिस इज टुवार्ड्स रीडर, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टुवार्ड्स रीडर। बेटा चार डायरेक्शंस होंदी ने बेटे, देयर आर फोर डायरेक्शंस। फर्स्ट इज टुवार्ड्स यू, टुवार्ड्स द रीडर, राइट। सेकंड इज अवे फ्रॉम द रीडर, थर्ड इज अपवर्ड,
देखो समझो, एक टुवार्ड्स द रीडर, एक अवे फ्रॉम द रीडर नीचे नू, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड मतलब ए वाली, डाउनवर्ड मतलब ए वाली, टुवार्ड्स द रीडर ए वाली और अवे नीचे नू। क्लियर? सो एक ए है, ये टुवार्ड्स द रीडर है। Let us have a next topic, magnetic field due to current carrying circular coil। एक coil है आ वाली, इस ते करंट पास करवाया बैटरी के थ्रू, इस तरह करंट है एंटी क्लॉकवाइज, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट। जस्ट इमेजिन इत्थे एक coil है, तुसी की कीता, दो होल किते कार्डबोर्ड गत्ते नू और ए coil दो विचों पा ली, राइट? इधरों निकल रही है, समझ आ रहा है बेटा जी? आयरन फायरिंग्स इत्थे सुट्टियां, तुसी टैपिंग किया, तुहाडी जो आयरन फायरिंग्स है इस तरह एडजस्ट हो जाएंगे, सर्कल्स ए बनाएंगे, ए लाइन्स। ठीक, ये तो हो गया रफ तरीका। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगा के तुसी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हो। देखो इस जगह पे एम ए करंट है ऊपर की तरफ, ये तुहाडे हाथ आ गया और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बन गई, समझ आ गया? आ देखो, आ ऊपर नू तुहाडी तरफ नू है ना, एम ए करके, और इस तरह एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ तुहाडी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इस तरफ करंट नीचे नू है और इस तरह क्लॉकवाइज, इस तरह क्लॉकवाइज तुहाडी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। हुण की हुंदा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स 2, 3rd, 4th है ना, 1, 2, 3 एंड 4th इदी भी और इदी भी इत्थे जाके मिल जाएगी, सेम डायरेक्शन च मिलियां ने। इस वास्ते इत्थे मैग्नेटिक फील्ड दो साइडां दी वजह ते हुई सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होएगी, यूनिफॉर्म होएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सेंटर दी तरफ। अगर तुसी मैं समझू तुसी कि ए ऑन द प्लेन ऑफ अ शीट है, इस तरह करके है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ दी इधर आई है, इस तरफ एम ए आई है और ए मेरी तरफ, इस तरह करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई है। क्लियर हो गया बेटा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, करंट कैरिंग रिंग। हुण ये मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा किस तरह फैक्टर्स जे ने केड़े इफेक्ट करते हैं? फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग। नंबर 1 करंट, नंबर 2 नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर 3 रेडियस। देखो जितना ज्यादा करंट होएगा नेचुरली उतनी मैग्नेटिक फील्ड होएगी और सेंटर से भी उतनी होएगी, सिंपल है। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, देखो हुणे एक रिंग है, एक रिंग दे नाल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर च आई, दो लाइन्स मिलियां, अगर एक होर रिंग दे नाल लग्या हुंदा तां उसदी भी सेंटर च आके मिलनी सी और ज्यादा बन जानी सी। जितने ज्यादा रिंग होंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, राइट? नंबर ऑफ रिंग ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। मैग्नेटिक फील्ड बी नाल आपां रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस दे नाल उल्टा रिलेशन है। देखो अगर इहदा रेडियस हुंदा मान लो ज्यादा, हुण तां चौथी लाइन जाके मिल रही है, जितने दूर जाते जावांगे आपां एक कंडक्टर दे जिन्ने दूर जाते जाते ने फील्ड उतनी वीक हुंदी जाती है। अगर ये बड़ा रिंग हुंदा तां जाके कोई 10वीं मिलनी सी, वो ज्यादा वीक होने सीगे और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर दे विच वीक हो जानी सी, है ना? तां जितना रेडियस ज्यादा होएगा मैग्नेटिक फील्ड घट होएगी, तां कट रेडियस वाला ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? इन्नी गल्लां समझ आ गई बेटा? नैक्सट लैक्चर दे विच असीं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड पढ़ांगे। थैंक यू।